तो आज हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो 3 फेज एसी सप्लाई पे वर्क करती है। 3 फेज एसी सप्लाई में 3 फेज होते हैं। अकॉर्डिंग टू कलर कोड देयर आर वाई एंड बी। ये तीनों फेज का सप्लाई हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को देते हैं। तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है उसमें स्टेटर वाइंडिंग होता है। स्टेटर वाइंडिंग में जो तीनों फेज के वाइंडिंग है दे आर डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय 120 डिग्री अपार्ट। तो तीनों वाइंडिंग एक दूसरे से 120 डिग्री पे डिस्प्लेस किए जाते हैं। तो व्हेन वी गिव द सप्लाई टू द 3 फेज इंडक्शन मोटर, बिकॉज ऑफ द 3 फेज वाइंडिंग विच आर सेपरेटेड in space by 120 degree, 3 phase sinusoidal current produced and the flux is produced because of these phases. So the nature of the flux is sinusoidal. So here we have the waveform of the flux is produced by the 3 coils of the stator. तो जो R वाइंडिंग है या R फेज है उसमें जो AC सप्लाई दिया है उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो हमने रेड कलर में दिखाया है और उसको नाम दिया है फाई आर। जो वाई फेज है उसकी वजह से जो स्टेटर के वाई वाइंडिंग में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो है फाई वाई और वो हमने येलो कलर से दिखाया है। एंड जो बी फेज है उसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है उसको फाई बी नाम दिया है और उसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है। तो because of the nature of the current which is sinusoidal, the flux produced is also of sinusoidal nature. So this is the omega t axis and this is flux. Now if we plot the flux phasors all in positive direction, they are like this. So positive direction of the phi r is this, positive direction of phi y is this and positive direction of phi b is this. All the phasors are 120 degree apart from each other. So the phase angle between phi r and phi y is 120, phase angle between phi y and phi b is 120 and phase angle between phi b and phi r is 120. Here you can see the position of the waveforms at different angles. So the value of omega t is equal to 0. At that point phi r starts. This is 60 degree, 120 degree and at 180 degree it again becomes 0 and again it becomes 0 at 360 degree. So this is one cycle of phi r. Similarly phi y is 120 degree apart from phi r. So at 120 degree phi y starts, which reaches to 0 at 300 degree and again it reaches to 0 at this position. Same way phi b is 120 degree lagging from phi y. So phi r then phi y is lagging 120 degree, that's why it is in this direction, and phi b is also lagging 120 degree phi y से phi b 120 degree lagging है, that's why it is in this direction. तो फाई बी जो है वो फाई वाई से 120 डिग्री लैगिंग है, तो उस 120 प्लस 120 240 डिग्री वहाँ से फाई बी स्टार्ट हुआ एंड इट इज़ लाइक दिस. सो वी हैव प्लॉटेड 3 फेज फ्लक्सिस फाई आर, फाई वाई एंड फाई बी. नाउ द रिजल्टेंट फ्लक्स फाई आर एट एनी इंस्टेंट वुड बी फेजर सम ऑफ द फ्लक्सिस. तो कोई भी एक टाइम इंस्टेंट पे अगर आपको रिजल्टेंट फ्लक्स चाहिए तो वो तीनों फ्लक्सिस का फेजर सम होगा. सो इफ वी राइट द इक्वेशन फॉर दिस फ्लक्सिस दे कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. सो फाई आर इज इक्वल टू फाई एम साइन थीटा. हियर वी हैव थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी and omega is the angular velocity.
phi y is 120 degree lagging phi r, that's why we will write like this: phi y is equal to phi m sin theta minus 120 degree. This is equation number 2. Here we have phi m is the maximum value of the flux, and phi b क्या होगा? phi b is equal to phi m sin theta minus 240, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं: phi m sin theta plus 120, because b is theta plus 120 degree. It is 120 degree leading from phi r. So we can write like this. This is our equation number 3. Now to check the resultant magnetic field, we will determine the value of phi r, that is resultant flux. This is small r. We will determine the value of phi r at 4 different instants which are 60 degree apart from each. So we will find the value of phi r at 0 degree, at 60 degree, at 120 degree and 180 degree. So let us start at 0 degree. तो जब हम लेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंड इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस थीटा इन इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, वी गेट लाइक दिस: द वैल्यू ऑफ फाई आर, दैट इज एट 0 डिग्री, फाई आर 0, वो होगा फाई एम साइन वैल्यू ऑफ थीटा इज 0 इज इक्वल टू 0. फाई वाई 0 इज इक्वल टू फाई एम साइन थीटा की वैल्यू 0 है, 0 माइनस 120 इज इक्वल टू फाई एम साइन माइनस 120 होगा. माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो होगा फाई एम साइन 120, माइनस साइन है आगे, साइन 120 इज इक्वल टू √3/2, तो क्या होगा? माइनस √3/2 फाई एम. इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर नेगेटिव साइन को हम लेफ्ट साइड ले जाए तो माइनस फाई वाई 0 इज इक्वल टू क्या होगा? √3/2 फाई एम. जब हम थीटा इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 3 में लिखेंगे तो होगा फाई बी 0 इज इक्वल टू फाई एम साइन 0 प्लस 120, और 120 साइन 120 क्या होगा? √3/2 फाई एम. अगर इस इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या होगा? साइन 0 माइनस 240, माइनस साइन बाहर ले ले तो माइनस फाई एम साइन प्लस 240, एंड साइन प्लस 240 होगा माइनस √3/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस वैल्यू वुड बी √3/2 फाई एम. तो आप ये इक्वेशन लो या इक्वेशन लो, आपको आंसर या वैल्यू सेम मिलेंगी. नाउ लेट अस प्लॉट दिस 3. तो वो कुछ इस तरीके से होगा. ये तीनों पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहे हैं. सो दिस इज अवर ओरिजिनल फाई आर, फाई वाई एंड फाई बी. नाउ द वैल्यू ऑफ फाई आर इज 0, तो फाई आर की वैल्यू 0 है. फाई वाई 0 इज इक्वल टू क्या है? माइनस √3/2 फाई एम. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन होगी. तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं दिस इज माइनस फाई वाई 0, एंड माइनस फाई वाई 0 का मैग्नीट्यूड है दिस इज √3/2 फाई एम. फाई बी 0 इज इक्वल टू √3/2 फाई एम, वो पॉजिटिव है, दैट्स वाई वो उसी की डायरेक्शन में होगा. दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये हो गया फाई बी 0 √3/2 फाई एम. सो फाई वाई 0 एंड फाई बी 0 है, तो हमें इसकी रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए, उसको हम नाम देंगे फाई आर 0. तो वो इस तरीके से होगा ग्राफिकली. तो ये जो हमारा एंगल है ये सेंटर में से पास हो रहा, ये 120 120 120 है, ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट विल बी इन द सेंटर ऑफ दिस टू. सो ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, and because of that the angle divided by phi r 0 is 30. ये 60 दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये 30 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री होगा. सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ phi r 0, रिजल्टेंट वैल्यू. सो अगर आप इसको इस तरीके से प्लॉट करें समझने के लिए, तो ये पॉइंट को हम O नाम देंगे. दिस इज OB, OC, OB इज इक्वल टू फाई वाई 0
एंड ओ सी इज इक्वल टू फाई बी ज़ीरो। ये हमारा रिजल्टेंट है, इसको नाम देंगे डी। तो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ डी। तो फाई आर ज़ीरो इज इक्वल टू ओ डी। अभी आप ये लाइन देखो तो दिस इज एट 90 डिग्री विथ ओ डी, सी ई इज एट 90 डिग्री विथ ओ डी। तो अगर हम ये ट्राइंगल कंसीडर करें तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ओ ई। तो हमें ओ ई की वैल्यू मिल सकती है। सो फॉर दिस केस वी विल डू cos 30। cos 30 इज इक्वल टू ओ ई प्लस ओ सी। तो हमें ओ ई की वैल्यू मिलेगी, ओ ई इज इक्वल टू ओ सी cos 30। ओ सी की वैल्यू हमें मालूम है, ओ सी इज √3/2 फाई एम, दैट इज फाई बी ज़ीरो, एंड cos 30 इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो फाई आर ज़ीरो क्या होगा, इट इज ओ डी। ओ डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ई, बिकॉज ये सेंटर में इंटरसेक्ट करता है। तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 2 टाइम्स ओ सी cos 30। ओ सी की वैल्यू है √3/2 फाई एम एंड cos 30 की वैल्यू है √3/2। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ फाई आर ज़ीरो इज इक्वल टू 3/2 फाई एम। तो ये है रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ फ्लक्स एट एंगल 0 डिग्री। नाउ अभी हम रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ फ्लक्स फाइंड करेंगे एट एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ थीटा is equal to 60 degree into equation 1, 2 and 3. So we will get like this. So if we put 60 in equation 1, phi r 60 is equal to होगा phi m sin 60। sin 60 की वैल्यू है √3/2 एंड phi m। phi y 60 होगा phi m sin 60 माइनस 120। तो क्या होगा -60, -60 में से माइनस साइन बाहर ले लिया तो होगा माइनस phi m sin 60 is equal to minus √3/2 phi m, because sin 60 is equal to √3/2। phi b 60 is equal to, हम लेंगे ये इक्वेशन sin 60 प्लस 120। तो 60 प्लस 120 होगा 180 एंड sin 180 is equal to 0। दैट्स वाई phi b 60 is equal to 0 होगा। नाउ वी विल प्लॉट दीज वैल्यूज। तो अगर हम ये वैल्यू प्लॉट करेंगे तो जो डायग्राम मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो दिस इज फाई आर, फाई वाई एंड फाई बी, तीनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। हमारे पास फाई आर 60 है √3/2 फाई एम, दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा फाई आर 60। फाई वाई 60 है नेगेटिव डायरेक्शन में √3/2 फाई एम। तो ये फाई वाई है उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में होगा फाई वाई 60, उसका मैग्नीट्यूड है √3/2 फाई एम। तो इसका हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे सेम वे जैसे पहले किया था। तो इधर से लाइन इंटरसेक्ट करेंगी 90 डिग्री पे, ये दोनों एंगल हो गए 30-30। हमने रिजल्टेंट का नाम दिया फाई आर 60। तो जो फाई आर 60 की वैल्यू है वो इस तरीके से होगी, इज इक्वल टू ओ डी, एंड ओ डी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए cos 30। अगर आप ए एंगल पे cos 30 अप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन मिलेगा। सो वी विल गेट 2 टाइम्स ओ ए। ओ ए इज इक्वल टू फाई आर 60। फाई आर 60 की वैल्यू है √3/2 फाई एम एंड cos 30 उसकी वैल्यू है √3/2। तो रिजल्टेंट वैल्यू मिली 3/2 फाई एम। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मगर जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई। कितनी चेंज हुई, 60 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर आप प्रीवियस केस में देखोगे तो पहले जो रिजल्टेंट मिला था वो अपवर्ड डायरेक्शन में था फाई आर 0। अभी जो रिजल्टेंट मिला इससे 60 डिग्री अपार्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिला। तो दिस इज फाई आर 0, दिस इज फाई आर 60, बोथ आर 60 डिग्री अपार्ट। So the value of the resultant flux is rotating clockwise। इधर जो phi r 0 था उससे clockwise डायरेक्शन में 60 डिग्री पे phi r 60 मिला। Now let us find the value of resultant at 120 degree angle।
So let us take theta is equal to 120 degree. We will put this value in equation number 1, 2 and 3. So phi r 120 होगा phi m sin 120, इसकी वैल्यू होगी √3/2 phi m. phi y 120 होगा phi m sin थीटा माइनस 120, थीटा की वैल्यू 120 पुट करेंगे तो होगा 0. एंड phi b 120 होगा phi m sin 120 प्लस 120, तो sin 240 इज इक्वल टू माइनस √3/2 phi m. तो ये हमारा phi r है, phi y है एंड phi b है, रेड येलो एंड ब्लू. तो जो phi r 120 है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में √3/2 phi m मैग्नीट्यूड है. सो दिस इज phi r 0, इट इज़ इन पॉजिटिव डायरेक्शन. जो phi y 0 है उसका मैग्नीट्यूड 0 है. एंड जो phi b 120 है वो नेगेटिव डायरेक्शन है बिकॉज माइनस साइन है. तो √3/2 phi m इट इज़ इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में होगा, इसकी एग्जैक्ट अपोजिट. ठीक है, दिस इज माइनस phi b 120. तो ये दोनों का रिजल्टेंट हमें चाहिए, phi r 120 एंड phi b 120. दोनों का मैग्नीट्यूड है √3/2 phi m, तो रिजल्टेंट होगा हमारा OD. सो इसको नाम देंगे A, इसको नाम देंगे C. तो ये रिजल्टेंट फाइंड करेंगे phi r 120 इज इक्वल टू होगा OD और उसकी वैल्यू होगी इज इक्वल टू 2 टाइम्स OA cos 30. अगर आप इस एंगल में cos 30 लगाओगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा. cos 30 इज इक्वल टू, अगर आप इसको E नाम दो तो OE डिवाइडेड बाय OA. तो OE इज इक्वल टू OA मल्टीप्लाई बाय cos 30 होगा. तो OD इज इक्वल टू 2 टाइम्स OE होगा. ये और ये दोनों सेम साइज़ के हैं, तो यहाँ पे ये होगा OD इज इक्वल टू 2 टाइम्स OE और OE की वैल्यू है OA cos 30. तो OA वो है √3/2 phi m एंड cos 30 की वैल्यू होगी √3/2. तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3/2 phi m. दिस इज द रिजल्टेंट फ्लक्स एट 120 डिग्री पोजिशन. इधर आप देखोगे कि इट इज़ फर्दर रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एन एंगल 60 डिग्री. सो दिस इज एंगल 60 डिग्री फ्रॉम दिस पोजिशन. तो phi r 60 ये पोजीशन में था. दिस इज phi r 120, दिस इज 30 डिग्री एंगल, दिस इज 30 डिग्री एंगल. सो इट इज़ फर्दर रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू है √3/2 phi m. इसमें आप देखो कि एट पोजीशन 0 phi r 0 इस डायरेक्शन में था, वो फर्दर शिफ्टेड 60 डिग्री. यहाँ से ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, टोटल 60 डिग्री शिफ्ट हुआ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देन अगेन वो क्लॉकवाइज शिफ्ट हुआ इन 60 डिग्री. सो नाउ वी विल फाइंड द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ phi r एट 180 डिग्री पोजीशन. सो वी विल टेक थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. हम थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेंगे तो उस टाइम हमें मिलेगा phi r एट 180 इज इक्वल टू phi m साइन थीटा. थीटा इज इक्वल टू 180, सो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0. अगर phi y 180 लोगे तो वो होगा phi m साइन 180 माइनस 120 इज इक्वल टू phi m साइन 60. साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, तो वो वैल्यू होगी √3/2 phi m. अगर हम phi b 180 लेंगे तो इट वुड बी phi m साइन 180 प्लस 120 दैट इज साइन 300. साइन 300 की वैल्यू होगी माइनस √3/2 एंड इट दिस इज phi m. तो हमें r y एंड b एट तीनों के लिए एट 180 डिग्री पोजीशन पे वैल्यू मिली. सो लेट अस फाइंड द रिजल्टेंट वैल्यू. तो जो phi r 180 है उसकी वैल्यू 0 है, phi y 180 है उसकी वैल्यू √3/2 phi m है. तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में दिस इज phi y 180 डिग्री एंड वैल्यू है √3/2 phi m. phi b 180 डिग्री है उसकी वैल्यू माइनस है, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में. तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलेगा माइनस phi b 180. तो ये दोनों जो वेक्टर है इन दोनों का हमें रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए एंड वो रिजल्टेंट वैल्यू होगी OD. तो जो हमने प्रीवियस केसेस में किया सेम वे हम रिजल्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे. तो वो होगी 2 टाइम्स OD इज इक्वल टू 2 टाइम्स OA cos 30 और जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी वो हो जाएगी 3/2 phi m.
तो इसकी अगर आप पोजीशन देखो तो इट इज़ फर्दर रोटेटेड क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स रहता है 3/2 φm, मगर उसकी जो डायरेक्शन है वो रोटेट होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इससे हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग नेचर ऑफ द फ्लक्स ऑफ 3 phases इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, द रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द फ्लक्स इज 3/2 φm एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता रहता है। तो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। और बिकॉज ऑफ दिस रोटेटिंग नेचर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन मोटर रोटेट्स।